Hello my dear students, this is my first video from my YouTube channel for class 12th. So today we're going to start the very first and the very basic topic of the syllabus of class 12th, that is partnership fundamentals. This is the first part of the video, and in this video we'll study that what is partnership, what are the features of partnership, what is partnership deed, what are the contents of partnership deed, what are the rules applicable in the absence of partnership deed, and apart from this we'll also study that which type of accounts do we prepare for recording partnership transaction. So moving ahead, first of all we will study the first part of this video, that is what do you mean by partnership. So students, you all have studied in class 11th business studies that partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried by all or anyone acting for all. It means a business which is governed by two or more than two person. ऐसा बिजनेस जिसको दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर चला रहे हों और बिजनेस में होने वाले सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सेकेंडली, द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय एनी वन पार्टनर और ऑल द पार्टनर्स. दिस डिफिनेशन is according to the section 4 of the Partnership Act 1932. आप सबको पता है that there is an act which was prepared in the year 1932 named as the Indian Partnership Act 1932, and according to the section 4 of this act, partnership is defined the relation between two or more persons who have agreed to carry on a business, and the business will be carried on by all the partners or any one partner acting for all the partners, and the proceeds of the business, whether it is profits or losses, will be shared between all the partners in their profit sharing ratio. So this was the definition of partnership. Now from the definition of partnership we will come to know about some of the main or the salient features of partnership. So the first feature of partnership is there should be two or more than two person. See students, according to the Partnership Act, there must be two or more than two person. However, this act does not specify the maximum number of partners in a partnership firm. However, the section 11 of the Companies Act 1956, it restricts the number of partner to 10 for a partnership firm carrying a banking business, and 20 in case of any other kind of business. On the other hand, the number of partners may exceed the maximum limit. It means there must be minimum 2, maximum it can be 10. Total number of partners can be 10 in case of banking business. But if you are not doing any banking business, you are doing any other kind of business apart from banking, the maximum number of partners can be 20. Now the next feature is the business should be lawful. Now what do you mean by lawful business? Lawful business simply means the business to be carried on by the partners must be legal. The business should be legal. There should not be any illegal activities prevailing in the business. It should be legal. It should be formed according to the rules and regulations and the principles laid down under the Act of 1932. The next feature is agreement. Now, what do you mean by agreement? There must be an agreement in the form of partnership. The agreement may be verbal or it may be in writing. Writing में भी हो सकता है agreement, oral agreement भी हो सकता है. The agreement may be for a fixed period of time or it can be for unlimited period of time also. It depends on the nature of the business or nature of the work done in the business. Next is the profit sharing. Now
The business is conducted for the main motive of earning profit, so there must be a profit sharing ratio between all the partners. कि business में जो भी profit हो रहा है वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स. द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. It may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for losses, or which partners will be only liable for losses. इस तरीके से आप अपने पार्टनरशिप को डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो लॉस भी उसी रेशियो में शेयर किया जाएगा. बट देयर माइट बी चांसेस दैट सम पार्टनर्स आर नॉट बीइंग मेड अ पार्ट ऑफ द लॉसेज ऑफ द फर्म. सो इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. Next is existence of business. So existence of business simply means a partnership can only be formed for the purpose of carrying on some business and not for any other purpose. किसी business को करने के लिए ही partnership form of organization form किया जाना चाहिए. Apart from business activities, अगर आप और भी कोई activity कर रहे हैं तो it will not be governed under the Partnership Act of 1932. And the next, the business can be carried on by all or anyone acting for all. According to the Partnership Act 1932, partnership business is carried on by all or any one of the partners acting for all. It means that every partner acts as an agent as well as principal. Agent means he represents other partners and thereby binds them through his acts, and a principal means he is bound by the acts of other partner. It means there must exist a mutual agency relationship amongst the partners. So this was the basic definition and the features of partnership. I will repeat myself for you all once again that partnership business is a business which is carried on by two or more than two partners, and the profit or losses of the business are shared between the partners in profit sharing ratio. And the business should be lawful, it should be legal, there should be a profit sharing ratio, and the most important thing that there should be an agreement between all the partners. That agreement kaisa, that how the business will be conducted, what will be the activities of the business, how much capital will be invested by every partner, what will be the profit sharing ratio, and so on. Now we need an agreement. Now agreement must be oral or written. If the agreement is in written form, it is known as partnership deed. Now what is partnership deed? It is a written agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership, and it is also known as article of partnership. पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, which contains all the relevant and important information for governing the partnership business. पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे वो बिज़नेस कंडक्ट होगा, कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, ये सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिस एग्रीमेंट के अंदर लिखी होगी, दैट एग्रीमेंट विल बी नोन एज पार्टनरशिप डीड. सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, name of the firm, name of the partners, head office of the business, other branches and addresses of that particular business, capital contributed by each partner, interest on capital given to every partner, interest on drawing charged from every partner. If any type of salary or remuneration is given to any partner, then it is also written in partnership deed. What will be the profit sharing ratio between the partner, what will be the nature of the business, what is the total capital contributed in the business. So these are some important information which is written in the partnership deed. But students, there are certain chances, there are certain conditions in which every partnership business has नॉट मेड दिस पार्टनरशिप डीड. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप बिजनेस में ये पार्टनरशिप डीड बनी हो. अब देखिए बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है
तब तो आपका बिजनेस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही चलेगा। बट इन केस आपने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है तो आप क्या करेंगे? बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि पार्टनर्स कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो टोटल 5 रूल्स होते हैं जिसके ऊपर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन गवर्न किया जाता है। सो लेट्स डिस्कस दोज रूल्स। एंड द फर्स्ट रूल इज that the profit sharing ratio between all the partners will be equal। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है then the profit sharing ratio will be written in that particular deed। that profit will be shared equally, or it will be shared in the ratio of 2:1, or it will be shared in the ratio of 3:1, like this। but in the absence of partnership deed, the profits and losses will be shared equally between all the partners। वहाँ पर सिर्फ equal distribution होगा profits and losses का। Second, any type of salary, commission or remuneration will not be given to any partner। किसी भी partner को कोई भी salary, commission, remuneration नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर डीड दैट दिस मच सैलरी विल बी गिवन टू मिस्टर ए, दिस मच कमीशन विल बी गिवन टू मिस्टर बी। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। द नेक्स्ट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। आप सबको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं फर्म में, तो फर्म हर ईयर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है। बट अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो ऑब्वियस ही बात है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 5% per annum, or at the rate of 6% per annum, or at the rate of 10% per annum। but in the absence of partnership deed, no interest on capital will be given to any partner। and same ways, no interest on drawings will be charged from any partner in the absence of partnership deed। हम drawings पर भी किसी partner से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो। एंड द लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। Interest on loan, it will be payable at the rate of 6% per annum even if there are losses। अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट से पेएबल है। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेएबल at the rate of 6% per annum, and that is fixed. Even if there is a loss in the firm, then also in that case also the interest on loan will be payable at the rate of 6% per annum. So students, these were some of the contents of the partnership deed and what are the rules applicable in the absence of partnership deed. So these are the 5 rules: that the profit sharing ratio will be equal, no salary, commission or remuneration will be given to any partner, no interest on capital will be allowed, no interest on drawing will be charged, and interest on loan will be payable at the rate of 6% per annum even if there are losses. तो बेटा ये तो बात हो गई कि what do you mean by partnership, what are the features of partnership, what do you mean by partnership deed and its contents, and what are the rules which are applicable in the absence of partnership deed. Moving ahead now, what is the accounting treatment for partnership transaction. अब हम लोग बात करते हैं accounting treatment की कि कौन से accounts हम लोग prepare करते हैं या किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस. अब जो सबसे पहले आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इन पार्टनरशिप फर्म, दैट अकाउंट इज़ नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड यू कैन सी इन दिस वीडियो दैट द फॉर्मेट ऑफ profit and loss appropriation account is presented in front of you all. First of all, ये जानना ज़रूरी है कि what do you mean by profit and loss appropriation account. So students, profit and loss appropriation account is prepared
to show the distribution of firm's net profit amongst the partner. It is an extension of profit and loss account. आप सब ने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। एंड आप सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने पे या तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता था या नेट लॉस मिलता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस अकाउंट में दिखाएंगे? उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। द नेट प्रॉफिट विच इज़ गेन्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और आप लोग क्लियरली देख सकते हैं फॉर्मेट में क्रेडिट साइड में सबसे पहली एंट्री है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपकी फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्रेडिट साइड होगी बाय नेट प्रॉफिट, और इन केस अगर मान लीजिए आपको नेट लॉस हुआ है सो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसकी भी एंट्री मैंने आपको करके दिखाई हुई है। अब आगे इसमें एंट्रीज क्या होंगी देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अकाउंट विल बी मेड ऑन द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, और जितनी भी फर्म की इनकम है दैट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। अब बात आती है कि फर्म के कौन से एक्सपेंसेस होंगे। फर्म जो भी पार्टनर्स को पे करेगा, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज फर्म जो भी पार्टनर्स को पे करेगा वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, और फर्म को पार्टनर्स से जो भी मिलेगा वो फर्म के लिए इनकम है। तो फर्म पार्टनर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यही सब पे करेगा। और आप लोग फॉर्मेट में देख सकते हैं कि डेबिट साइड सारी एंट्री की हुई हैं दैट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो हमने दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, देन सैलरी, देन कमीशन। पार्टनर्स से हमें क्या मिल सकता है? पार्टनर से हमें मिल सकता है ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, इसीलिए उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट, अब आपने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली, अब आप टोटल कर लीजिए। इफ़ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज़ मोर दैन द डेबिट साइड इट इज़ प्रॉफिट। मतलब जो भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ था उसमें से आपने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ले लिया, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री डेबिट साइड होगी, देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड टू बी इन केस ऑफ प्रॉफिट, and it will be distributed in PSR, that is profit sharing ratio. If the total of credit side is more than the debit side it is profit. If the total is of debit side is more than the total of credit side it means it is loss. So the profit or the losses will be distributed between the partners in their profit sharing ratio, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा 1:1, 2:1। आप जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट आपको कहाँ से मिला? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो हम ट्रांसफ़र करके कहाँ ले आए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उस प्रॉफिट में से हमने सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर सैलरी दे दिया, फिर कमीशन दे दिया, उसके बाद उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ले लिया। इतना करने के बाद भी अगर नेट प्रॉफिट कुछ बच जाएगा तो दैट विल बी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एंड दैट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या दैट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर एवरीवन? सबसे पहला अकाउंट जो आप प्रिपेयर करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं. द फर्स्ट मेथड इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इफ़ यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट. और अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सिर्फ एक अकाउंट, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना तो कंपलसरी है, वो तो आपको हर केस में बनाना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के अलग अलग मेथड हैं. सो पे अटेंशन ऑन दिस. इफ़ यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो आपको टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे 3. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट. और अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे 2. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द मैंडेटरी अकाउंट दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल द केसेस. हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनी वन मेथड आउट ऑफ दीज 2. अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे. सो बाय यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट आपको दो अकाउंट बनाने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट. ध्यान रखिएगा, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी विल ओनली रिकॉर्ड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, नथिंग एल्स. बाकी जो उसके इनकम्स और एक्सपेंडिचर हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सो ऑन, वो सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में. जैसा कि आप फॉर्मेट में देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से और एंट्री होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी. मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है दैट A and B are partners having capital of rupees 2 lakhs and 1 lakh. A की कैपिटल 2 lakhs, B की कैपिटल 1 lakh. आपने एंट्री की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, A के कॉलम में 2 lakhs एंड B के कॉलम में 1 lakh. ये इसकी कैपिटल है. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा हम कोई एंट्री नहीं करते हैं. हाँ, अगर पार्टनर्स के कैपिटल में किसी भी तरह का कोई चेंज आ रहा है, मान लीजिए जो हमारा पार्टनर बी है वो 50,000 रुपीज़ और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. देखिए मैंने लिखा हुआ है बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़ एनी पार्टनर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल. तो मैंने बी के कॉलम में देखिए मार्क किया हुआ है कि मान लीजिए उसमें लिखा है दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड 1 लाख एंड बी इंट्रोड्यूसेस 50,000 कैपिटल. तो आप बी के कॉलम में क्रेडिट साइड 50,000 बाय बैंक करके इंक्रीज कर देंगे. और अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने 50,000 अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉइंग की एंट्री बेटा डेबिट साइड होगी टू बैंक अकाउंट इफ़ एनी पार्टनर विड्रॉज द कैपिटल. बट इन केस अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल में कुछ भी ना ही इंट्रोड्यूस कर रहा है ना ही विड्रॉ कर रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उनके कैपिटल्स को रिकॉर्ड करने के अलावा कोई एंट्री नहीं होगी. आप एंट्री करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में 2 lakhs, बी के कॉलम में 1 lakh एंड ऑन द डेबिट साइड 2 बैलेंस कैरिड डाउन 2 lakh 1 lakh अकाउंट क्लोज्ड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल रिकॉर्ड की जाती हैं, जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को आगे एक्सपैंड करने के लिए. ओनली द फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ी हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट. पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम लोग उनके सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम रिकॉर्ड करेंगे. इसको भी हम अच्छा करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस मोस्टली क्वेश्चंस में दिए होते हैं. लाइक मान लो इसमें भी दिया होगा कि मिस्टर ए इज़ हैविंग अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 5,000 एंड मिस्टर बी इज़ हैविंग अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 3,000 इन देयर करंट अकाउंट. तो आपने एंट्री कर दी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड. अगर क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं तो अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होगा. करंट अकाउंट के केसेस में डेबिट बैलेंसेस भी हो सकते हैं. अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो अकाउंट डेबिट साइड से शुरू होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है,
वो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन्ड होगा। लाइक अगर मान लीजिए दिया दैट मिस्टर ए इज़ हैविंग ₹5,000 क्रेडिट बैलेंस इन करेंट अकाउंट, तो आप एंट्री करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में 5,000, एंड लिखा हुआ है दैट मिस्टर बी इज़ हैविंग ₹3,000 डेबिट बैलेंस इन करेंट अकाउंट, तो एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बी के कॉलम में 3,000। ये अकाउंट आप दोनों साइड से हो सकता है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि डेबिट बैलेंसेस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस भी हो सकते हैं। दूसरी बात, सेम ये जो अकाउंट है बेटा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये पार्टनर्स का अपना पर्सनल अकाउंट है। ये भी पार्टनर्स के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे चलेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, मतलब पार्टनर्स की जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड पार्टनर्स की जो भी इनकम्स हैं या उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इसको समझने का बहुत सिंपल सा एक तरीका है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने जो भी चीज़ें डेबिट साइड लिखी थी दैट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी थी दैट विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बना रही है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ द अकाउंट विच इज़ मेड बाय द फर्म। तो फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस हैं और क्या इनकम है वो उसने उस हिसाब से रिकॉर्ड की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये उनके पर्सनल अकाउंट हैं, तो इनके एक्सपेंसेस और इनकी इनकम अलग अलग रिकॉर्ड होगी। अब जैसे पार्टनर्स को देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला, ये सारा हमने क्रेडिट साइड लिख दिया क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम है। इसके अलावा डेबिट साइड में हमने क्या रिकॉर्ड किया था पीएल अप्रोप्रिएशन में, सॉरी क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक चीज़ एक्स्ट्रा आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं दैट इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अब आप देख लीजिए आपके सामने फॉर्मेट है, ऑल द इनकम्स ऑफ द पार्टनर like interest on capital, salary, commission and profit and loss appropriation account का profit का शेयर। अगर profit and loss account में profit partners के बीच में distribute किया गया है, तब जो बचा हुआ profit था, distributable profit था, that will be written on the credit side। और अगर distributable profit loss की फिगर है तो हमने उसको कौन से साइड लेकर जाना है, डेबिट साइड। देखिए डेबिट साइड भी एंट्री मैंने की हुई है कि दैट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ इन केस ऑफ लॉस। सो दिस इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसके बाद आप दोनों साइड के टोटल निकाल के टू बैलेंस कैरेड डाउन आप इसको बैलेंस कर दीजिए। आपने बैलेंसिंग ऑफ द लेजर पढ़ी हुई है, क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 आया, डेबिट साइड का टोटल 7,000 आया, यानी डेबिट साइड 3,000 कम पड़ रहे हैं, तो वो 3,000 की आप एंट्री पोस्ट करेंगे और एंट्री करेंगे टू बैलेंस carried down, मतलब that is the balance on the closing date. Clear everyone? So this is the format of partners capital account when you use fixed capital method. In fixed capital method we prepare two different accounts, partners capital account and partners current account. In partners capital account we only record the fixed capitals of all the partners, nothing else will be recorded. And in partners current account the income, expenditure and profit and losses of the partners will be recorded. The income and the profits will be recorded on the credit side and the losses or the expenditure will be recorded on the debit side. So this was about fixed capital method. Now we'll move on the next method, that is fluctuating capital method. And fluctuating capital method में हम सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, that is partners capital account. आपके सामने जो दो अकाउंट बने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए और इसी के साथ आपका आ जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट। हम एक सिंगल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी अकाउंट में पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस रिकॉर्ड होंगे, इसी अकाउंट में उसके सारे इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉसेस रिकॉर्ड होंगे, एंड एट द एंड हम दोनों साइड का टोटल करके बैलेंस कैरिड डाउन निकाल के अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। आपको फॉर्मेट में जैसा आप देख सकते हैं दैट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनके जो फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारा क्रेडिट साइड पे लिखा है।
डेबिट साइड पे ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ है किसी तरह का तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेबिट साइड पे लिखा है। इसके बाद आपने दोनों अकाउंट को टोटल कर दिया और आपने बैलेंस कैरेट डाउन करके क्लोजिंग फिगर निकाल के अकाउंट्स क्लोज कर दिए। So students, this was all about for my first video for the students of class 12, and this is the basic thing which you have to study in partnership. That what is partnership deed, what are the rules applicable in the partnership deed. And apart from this, the most important thing is कि what accounts या which accounts are prepared for recording partnership transaction. So first and foremost, the most important account which we have to prepare is the profit and loss appropriation account. It will be prepared in all the cases. Secondly, after preparing profit and loss appropriation account, you will prepare partners capital account, which has two methods: fixed capital account method and fluctuating capital account method. If you are using fixed capital account method, you will prepare two accounts, that is partners capital account and partners current account. If you are going through fluctuating capital method, you will prepare a single account which will be known as partners capital account. So student, this was all about for my first video. In the next video of class 12, we'll study about the calculation of interest on drawings, calculation of interest on capital, that what are the cases in which interest on drawings or interest on capital is to be calculated, and we will also study the preparation of profit and loss appropriation account. Till then, keep on studying, go through the video, go through each and every topic. I have tried my level best that I can explain you each and everything in a very easy way, but then also if you have any query, if you have any problem, you can ask me freely at any time personally. Keep studying and best of luck for your future.